पर रोक देगा यार। आपको भोपाल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? तो ये राजा भोज का ये मतलब वो था इसका राज्य, उन्हीं का तालाब था, उन्हीं का भोपाल बसा हुआ था। और रानी जो गजमोतन है ना, जो कमलापति स्टेशन बना उनके नाम से, उनकी मूर्ति है ना उस तरफ, नया जो ब्रिज बना ना वहाँ पे उनकी मूर्ति है जमी हुई। और उसके बाद किसने राज किया? उसके बाद राज फिर तो बस ये शिवराज सिंह है, कमलनाथ जी हैं, मतलब विधायक लोग इनके अंडर में है। और ये जो महल है ये मेन रोड पे गौहर महल, हाँ जी, ये किसका है? राजा भोज का। ये भी राजा भोज का है? राजा भोज का, सारे महल राजा भोज के हैं? हाँ उनका ही मतलब भोपाल बसा हुआ है, इनने ही भोपाल बसाया था। तो घूमने की क्या क्या जगह है टूरिस्ट प्लेस? केडवा डैम है, कलियासोट डैम है और ट्राइबल म्यूज़ियम है और एक और म्यूज़ियम है, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है। लेक तो भोपाल की खासियत है, लेक इज़ द ब्यूटी। काफी सबसे सारे बेस्ट वीआईपी रोड जहाँ पर अभी अपन हैं। और जगह सबसे अपना बोट क्लब लेक व्यू बहुत अच्छी जगह है। सब इसके अलावा कुछ इतना अच्छा है भी नहीं। तो बेगम राज था भोपाल में, उसके बारे में आपको कुछ पता? कमलापति में, जो पीछे कमलापति बना रानी है, पीछे जस्ट अभी इसकी मूर्ति लगी हुई है। अभी नया पुल बना है ना, नया ब्रिज, वहीं लगी है इनकी मूर्ति। भोपाल का इतिहास कुछ अलग सा है, कहिए तो एक मिसाल सा है। राजा भोज का ताल और रानी कमलापति की निडरता के बाद भोपाल को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले 4 स्तंभ थी ये 4 बेगम। भोपाल शहर पर पूरे 107 साल 4 औरतों ने राज किया है और इसे दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट बनाया। 90% हिंदू राष्ट्र और ब्रिटिश शासन के बीच बेगमों ने अपना परचम कायम रखा। चारों ओर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी भोपाल बेगमों के हाथ में महफूज रहा। ये रुतबा, ये अंदाज, ये तालीम और ये तहजीब, भोपाल को ये संस्कृति बेगमों ने दी। So the Begums were, very simple, practical, and they thought of things which really mattered. The laws, bylaws, the kind of things that they did, and the kind of reforms which made Bhopal progressive. So when I say Qudsiya Begum actually broke the path for women, she led it. Sikandar Begum documented it, consolidated it, kept an army, did surveys, did things. Shah Jahan Begum developed her infrastructure onto that. And when you see that all these things which happen, prosperity has to come. And prosperity came, and Sultan Jahan Begum and the people of Bhopal enjoyed it, and we became a very progressive place where our women were free, and they were doing all sorts of things, and they didn't needed permission. These women lived simply and managed Bhopal like a well-managed kitchen with 2 ministers. And the most amazing part is that there was simplicity in whatever they did. There was not a lot of pomp into it. And in a nutshell, I would say whatever Bhopal is because of them, not because of others. This city, men in Bhopal have nothing to do with Bhopal. It's a women's city, and whatever you see in this city is all about women, or has been done by women, because men in Bhopal do nothing except sitting on the patiya and talking. These houses reek of those people. It smells of them, it talks about them, it reflects their taste, and it shows that they were, they looked ignorant, but they knew everything and they took care of everything. All 4 of them were alive and lived here in Shaukat Mahal at one point of time. And it's not the question of which one was their favorite,
it's the question of the place where a lot of memories were created. So it was in Shaukat Mahal that a lot of war and peace and love, everything happened. It's quite a drama, and I call it that, you know, maybe the Globe Theatre in England, London, would go blank in front of the kind of stories you have from Shaukat Mahal. So love, all the human emotions have lived here. Love, anger, fear, deceit, and you know, this forgetfulness and indecisiveness, everything has existed in Shaukat Mahal, and the Begums have lived their life because this place has been the epicenter for more than 100 years. So this is the oldest structure in the entire complex. So I believe this is, I can't guarantee favorite, but I surely know that this is the place where most of the memories were created. आज इस शहर का इतिहास धुंधला सा गया है। जिन्होंने भोपाल को नाजों से पाला, इन्हें पानी, छत, दौलत, शोहरत और आज़ादी दी, आज उन्हीं को कैद कर कुछ किताबों में छुपा दिया है। जंग दरबार लोगों से भरे हुआ करते थे, आज उन दरबारों में खामोशी की गूंज है। आज उन दरबारों में टूटी हुई छतें हैं, आज उन दरबारों में पुती हुई दीवारें हैं। जो महल कभी रोशनी से जगमगाते थे, आज वो अंधेरे के हवाले हैं। जो दरवाजे बेगमों ने पूरे भोपाल के लिए खोले थे, आज वो उन्हीं के लिए बंद है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जब आए थे तब तो लगता था कि हाँ कितनी अच्छी जगह है, बन रही थी उस टाइम। तो हमने वैसी हालत में भी देखा इसको, और जब हम लोगों ने बना के कंप्लीट कर दी तो अब और ज़्यादा अच्छी हो गई। उस टाइम भी इतनी अच्छी थी ये बिल्डिंग, टूटी हुई बिल्डिंग भी ऐसी लगती थी कि कैसी होगी जब ये पूरी खड़ी होगी, कि दीवारों पे पेंट नहीं है, पेंट होगा तो कैसा होगा। जो नक्काशी हुआ करती थी पहले पत्थरों पे, बाकी कुछ जैसे कुछ कॉलम्स यहाँ पे पुराने और जो नए आए, तो वो पत्थर वाली जो नक्काशी है वो तो है ही नहीं पहले जैसी, या मार्बल की जो है, जो भी आकृतियाँ वगैरह बनी हुई थी, डिज़ाइंस वगैरह, तो वो पहले जैसा बन ही नहीं पाया। जो पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था वो अब काफ़ी मतलब एक तो महंगा, और अब उस तरह के कारीगर भी नहीं है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन अब होता ही नहीं है। तो इस तरह से, और फिर इतना महंगा है कि वो जो जिन लोगों के पास है अब डिस्ट्रीब्यूट होते होते जो अब जो बचा है, तो वो शायद मतलब वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर लें, उस लेवल का मेंटेन कर लें। जब सरकार आई तो 1953 में इसको नगर निगम को दे दिया। नगर निगम का पहला ऑफिस यहीं खुला था, भोपाल का जो नगर निगम का ऑफिस था, हेडक्वार्टर, इसको बना दिया था। तो 1953 से 2016 तक उन्हीं के पास था ये, और उन्होंने एक रत्ती भर काम नहीं किया था इसमें कि कभी पुताई भी करवा दी हो। मेंटेनेंस, सफाई तो दूर की बात है, ना कभी सफाई करी, ना कभी एक पेड़ उठाया कहीं से। मतलब जो हो रहा है होने दो, बिल्डिंग गिर रही गिरने दो। और लोगों ने कदर नहीं करी, कहीं से भी खोज रहे हैं, खजाना ढूंढने के चक्कर में कुछ भी दीवार तोड़ दी, ज़मीन में खोद छेद कर दिए, मार्बल निकाल के ले गए, जो भी अंदर लगा हुआ था डिज़ाइन वगैरह, झूमर, सब चोरी वगैरह हो गए। It's not going anywhere, one. It's all crumbling. And the point is very important, Begums have left behind, like Bhopal is a city which has more than 300 monuments. उसमें से कुछ गायब हो गए होंगे अब तक, लेकिन it's not in a good shape. We can't blame the government for everything because public will be to ho. If you don't have pride for your own thing, if you go to Jaipur, a person would stand up and proudly say, "This is my Jaipur." If you go to Marwar in Jodhpur, they'll say this. But if it comes to Bhopal, that sense of pride is gone. That feeling for Bhopal is gone. Considering Bhopal as a part of your life is gone, cribbing about what's not happening and why Bhopal literally sucks as a place कि गाँव है यहाँ कुछ भी नहीं है, and this
आप ये कहिए कि भोपाल ने आपको क्या दिया, ये तो पता, ठीक है, चलो मानते हैं भोपाल ने आपको कुछ नहीं दिया। आपने भोपाल को क्या दिया है? कोई नहीं देता भोपाल को कुछ भी। उसके दरख्त कट रहे हैं, उसकी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसकी पुरानी इमारतें टूट रही हैं, उसकी लोगों का रहन सहन बदल रहा है, उसकी तहजीब व तमीज़ में फ़र्क आ रहा है। अगर याद नहीं रखोगे तो सांची के स्तूप में जैसे 3 रेलिंग हैं, वो कहती हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर गो हैंड इन हैंड। जिसका माजी नहीं होता उसका हाल तो छोड़िए मुस्तकबिल भी नहीं होता। यानी इफ़ यू डोंट हैव अ पास्ट, यू डोंट हैव अ प्रेजेंट एंड यू डोंट हैव अ फ्यूचर। हाँ, करना ही चाहिए। मतलब जैसे वो सामने वाला मोती महल भी टूट गया, उसका भी रेस्टोरेशन का काम होना चाहिए। तब तक होगा नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। अभी बन गया है तो लोग फिर भी आके अंदर देख लेते हैं कि अच्छा ये है क्या। बाकी उस टाइम पे कौन अंदर आ रहा था जब ये गिरने की हालत में था? मोती महल में आज कोई भी नहीं जाता है, कि बारिश में तो और कोई नहीं जाता कि कब गिर जाए। टूरिस्ट प्लेस है भोपाल, लेकिन कुछ है ही नहीं है सब, लेकिन देख रेख ही नहीं हो रही उस हिसाब से। लोग वैसे भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी आना चाहते हैं, लेकिन हमें बोल के रखा है ऊपर से कि पब्लिकली अलाउ नहीं अंदर आना, तो हम इसलिए मना कर देते हैं। बाकी अगर खुलेगा तो लोग आएंगे और देखने की। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? कोई पार्क में तो जाएगा नहीं डेली, और पार्क तो हर ही जगह है। एंड इफ़ यू वांट टू रिवाइव समथिंग यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट फर्स्ट। मेरे बड़ों ने किया, यानी मुझसे एक नस्ल पहले, नॉट माई फादर्स जेनरेशन बट देयर एल्डर्स और देयर ब्रदर्स जेनरेशन, बट माई फादर्स जेनरेशन डिडंट डू एनीथिंग। उस उम्र के लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर वो करते तो ये गैप ही नहीं आता ना। तो जो लोग 70s से लेकर के 90s तक में जिनके कंधों पर जो 25 से 40 साल के बीच के लोग थे, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रीब्यूशन किया। भोपाल के केस में, मैं पूरे मुल्क की तो बात ही नहीं कर सकता, भोपाल के केस में चीज़ें डेसिमेट होती रही और किसी को परवाह भी नहीं थी। लेकिन यह है कि अब सब जाग गए हैं और हर इंसान को लगता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, जिसकी छाँव में आराम फरमा रहे हो, कम से कम ये तो पता करो कि उसकी जड़ें कहाँ तक हैं। It doesn't matter whether it's crumbling, falling, or there's no chance, because you only discover potential when it's in danger.